Mat School opened its doors in Karachi in 2010. Our mission was to foster growth and development within the local arts community. Karachi is a sprawling metropolis of over 20 million people, and when we first opened our doors, we were absolutely flooded with people from all over the city who wanted to come and learn the arts. There's definitely a lack of art institutes where children can go and discover the arts and sort of follow their passion and dreams. 50% of people in Karachi live below the poverty line. So obviously we did get a lot of people who could afford to come and take the art education programs, but we also realized that there is such a large percentage of students and children out there, teenagers out there, who were actually not able to afford the programs that we were offering. But of course they had immense talent and a lot of scope. This in turn gradually led us to offer a free arts program. The reason we chose Lyari is because it is perhaps one of the most hardest hit communities in Karachi. There is a lot of strife, there is a lot of violence. It's definitely a marginalized community, very culturally diverse, very ethnically diverse, but very, very hard hit, especially when the law and security situation goes south. I think Lyari has been traditionally and historically one of the most trouble areas. मुझे बहुत exciting project लगा कि लियारी से बच्चे आए जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ सही मानों में तालीम नहीं बढ़ती है, जहाँ गैंग वॉर्स मौजूद हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन का मसला है, ऐसे बच्चों को ट्रेन करके बाकायदा एक्टिंग के लिए लाया जाए, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। लियारी के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट इस वक्त मौजूद हैं वो इस काबिल नहीं है कि पेरेंट्स जो है वो वहाँ पर अपने बच्चों को भेजने में सेफ़ महसूस करें, सिक्योर महसूस करें, क्योंकि वहाँ पर नशा और इस टाइप की दूसरे मामलात, गैंगस्टर भी वहाँ पर उनका भी आना जाना है, क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सकता, वो जहाँ चाहे वो वहाँ आ सकते हैं। तो पेरेंट्स को वहाँ बच्चों को भेजने में इवन ये कि बच्चे भी वहाँ जाने से घबराते हैं। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा मकसद ये भी है कि बच्चों की फीलिंग्स को चेंज करना। जब हम म्यूज़िक की तरफ किसी बच्चे को लेके आते हैं तो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो ऑल टुगेदर चेंज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि म्यूज़िक ख़ुद एक लैंग्वेज है। तो जब हम उस लैंग्वेज को सिखाते हैं तो उस लैंग्वेज का कल्चर इंसान के अंदर आना शुरू हो जाता है और वो एक एग्रेसिव सोच से हट के एक पोलाइट सोच की तरफ आता है। उसमें काइंडनेस बढ़ती है, उसमें हम्बलनेस बढ़ जाती है। एक अच्छा म्यूजिशियन जो होता है वो एक अच्छा इंसान भी होता है। Music crosses ethnic divides. It's the universal language of love. It's something that everybody understands. It's something that will look past your color, your religion, your sect, where you come from. All those things become irrelevant. When you give the gift of music to a young child who's coming from a marginalized community such as Lyari, who's been exposed to violence, to discrimination, to bias, to a rough economic environment, it is something that frees them. It's something that gives them wings. So one of the first auditions for Lyari Stars 3, we were in Aga Khan School in Kharadar. And I remember standing outside one of the classrooms where the singing auditions were going on. And suddenly we heard this voice. Now, we've auditioned hundreds and hundreds and hundreds of kids for singing over the last 3-4 years. But we'd never heard a voice that was so mature, so in tune. I mean, it did not sound like a child singing. It did not sound like somebody auditioning. This was pro level. Me and my husband looked at each other, we rushed in and we met the owner of the voice. It was a boy called Adil Baloch. He was an 18-year-old resident of Lyari and he had heard about the program and he had come to give an audition. We were flabbergasted, we were quite dumbfounded. This was raw talent which was of such high caliber.
We immediately had a dialogue with him, had a conversation with him, and this is where it gets really interesting. मैंने और आसिम ने एंट्री तो अपनी कराई थी, लेकिन वहाँ एक इशू ये आ गया था कि किसी मिसकंसेप्शन के थ्रू शायद हम एक जैसे लगते थे, तो उन्होंने जो है खाली मुझे आदिल समझ कर ही, हम दोनों को आदिल समझ कर ही, मतलब मेरा नाम वहाँ लिखा था, आसिम का नहीं लिखा था। तो मैं चला गया अपना ऑडिशन देने के लिए, तो मैंने अपने भाई का भी जिक्र किया कि यूँ हम ट्विन्स हैं और एक जैसे लगते हैं, हम गाते हैं, बाकी हरकतें भी हमारी एक जैसी हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपना ऑडिशन दे दें, उसके बाद बेशक अपने भाई को बुला दीजिएगा। फिर आसिम अंदर आया और आसिम ने किस तरह ऑडिशन दिया। मैं जब आया था ऑडिशन देने के लिए, तो मैं जब अंदर गया ऑडिशन देने के लिए, तो सर हमजा जाफरी मैम निदा वहाँ पे थी। तो मैम निदा ने कहा कि ये तो अभी आ चुका है यहाँ पे, जब गा के गया है। तो मैंने कहा नहीं, मैं वो नहीं, बल्कि वो मेरा भाई था और मेरा नाम आसिम है, मैं उससे ज़रा सा जो है 10 मिनट छोटा हूँ। We grabbed both kids, we talked to them, we said, well, I mean, we told them, you know, you're definitely in the program, but hold on because we have something more for you. At the same time that we were running Lyari Stars, Hamza Jafri was spearheading a program called Bradri Broadcast. Bradri Broadcast is a 34-piece, all-acoustic, ethnic Pakistani orchestra that was currently producing and composing 10 songs in 10 different languages of Pakistan. Now, the irony was that for weeks they had been struggling to find a Balochi singer who could sing the very complicated melody that they had created. When we found these two kids, they happened to be Baloch, they spoke their native Balochi language perfectly, and they were Class A singers. Now, before this, numerous professional Balochi singers had walked through our doors, and each one had left unable to sing that melody because it was definitely a very complicated one. These kids nailed it. Our twin boys now are one of our successes. They are featured in, I think, 3 or 4 songs of Bradri Broadcast, which has been their first professional recording as singers. They are climbing from one step to another, and they're singing locally within their community as well as in other areas. They've appeared on various television shows. They're just wonderful children. ये जो अरसा था तकरीबन 2 या 2.5 महीनों का बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे आर्टिस्ट से मिले, बहुत किस्म के लोग थे और बहुत अलग कम्युनिटीज़ से लोग थे, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। कोई किसी एक्सपेक्ट में माहिर है, कोई पॉप में है फॉर एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे हमने एक नई चीज़ सीखी बिल्कुल, जो ईस्टर्न म्यूज़िक है उसको बिल्कुल सही से जांचा हमने, उसको एक दिल से सीखने का मौका मिला, उसको दिल से देखने का मौका मिला। चूँकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमने कोई वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट देखा ही नहीं, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे ईस्टर्न थे, और वो चीज़ है जो आपको सबसे अलग करती है, और सीखने का बहुत कुछ मिला। मैड स्कूल ने ये जो इनिशिएटिव लिया लियारी स्टार्स प्रोजेक्ट का, इसमें आदिल और आसिम जैसे बहुत सारे बच्चों को जो है आगे बढ़ने का चांस मिला है और मिलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है और इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर बार बार होने चाहिए। लियारी के बच्चों को और मौका मिलना चाहिए। वहाँ पर और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर अगर हम जाकर ऑडिशंस लें तो हमें और अच्छा टैलेंट मिल सकता है। Another amazing success story from Lyari Stars was a boy named Kaifi Khalil. When we first met Kaifi, I still remember it was, and I still get emotional talking about it, because he was
a young boy in his late teens. He had pretty much been living on his own. His mom had remarried and left the house. His father had passed away. His sister was married. He was pretty much living all by himself for 6 years when we discovered him. म्यूज़िक का सफ़र मैंने कुछ इस तरह स्टार्ट किया कि मैं अपने घर पे अकेले था काफ़ी अरसे से। तो जब मेरे फादर गुज़र गए तो मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था, लेकिन उन्होंने जब वो गुज़र गए उससे पहले मुझे बहुत कुछ दे के गुज़र गए। म्यूज़िक का एक ऐसा मुझ में जुनून है जो मैं ख़ुद भी नहीं बता सकता कि मैं क्या करता हूँ म्यूज़िक के साथ। मुझे बस म्यूज़िक ज़िंदा रखता है, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। Kaifi had a huge passion for the guitar. Somehow or the other he scraped together money and he bought himself a second-hand guitar, but he didn't have an avenue. He didn't know what to do with this passion. He didn't know where to go. He didn't know how to learn. He didn't have any money. He was struggling. That's when he learnt about the math school, and I still remember, you know, he tells me that there would be a feeling of shock or disbelief when he learned that there's actually an institute where you can go, where you will be able to follow your passion, that there will be a teacher over there who's going to teach you, and it's going to be free of cost. मैं चला गया मैड स्कूल, वहाँ का माहौल देखा, तो उन्होंने मुझे सुना, मुझे सिलेक्ट किया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा शदीद खुशी हुई। इतनी खुशी की ज़िंदगी में बहुत कम दफ़ा इस तरह की खुशी होती है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैं घर आया, फिर भी मुझे यकीन नहीं था कि ये फ्री में सिखाते हैं। मैंने दोबारा कॉल किया उनको कि भैया आप मुझे बताएं कि आप फ्री में सिखाते हैं या नहीं। उन्होंने कहा आप बेफ़िक्र रहें कि हम आपको फ्री में सिखाएंगे, उसके अलावा भी आपको अच्छे से प्लेटफॉर्म देंगे जहां आप परफॉर्म कर सकोगे, ये वो। तो मैं काफ़ी खुश था, बहुत ही ज़्यादा। कैफ़ी का जो एक्सपीरियंस है ना, जो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने का एक्सपीरियंस है, वो मैं समझता हूँ इस वक्त मेरे ग्रुप में तो कम से कम किसी का भी नहीं है। क्योंकि अकेले सरवाइव करना, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स इन लाइफ। नहीं कर पाता इंसान, अकेले सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। हमज़ा और मैंने 5 से 6 साल पहले मैथ स्कूल का इदारा खोला था, और यहाँ पे हमारा मकसद यही है कि हम लोकल आर्ट्स की कम्युनिटी को सपोर्ट करें, क्लासेस दें, बच्चों को प्रोग्राम्स दें, एंड बेसिकली आर्ट के हवाले से जितने भी आप काम सोच सकते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम सारे ही करें। फेस्टिवल्स हमने की हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल्स की हैं, थिएटर हम बहुत करते हैं, और क्लासेस जैसे कि ये प्रोग्राम ये भी आई थिंक अब हमारे 3रे या 4थे साल में है। आपकी सपोर्ट बच्चों के लिए बहुत अहम है, और आज आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या वो सीखेंगे, क्या प्रोग्राम होगा। और आप लोग आए, इसकी बड़ी अहमियत है, और आर्ट्स की बड़ी अहमियत है बच्चों की ज़िंदगी में, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी क्रिएटिविटी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। तो अच्छा है कि आप लोग आए और आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर नहीं आ रहा तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू वाला प्रोजेक्ट था कि मैं आऊँ
और ऐसे लोगों को पढ़ाऊँ जिन तक कभी वो तालीम जाती ही नहीं है। शायद उन्होंने ये दुनिया देखी नहीं है कि यार एक्टिंग पढ़ी भी जाती है या एक्टिंग भी कोई स्कूल होता है। यहाँ पे आने के बाद एक्सपीरियंस एक बहुत अलग रहा, क्योंकि वो 3 साल उन्हें हो गए थे, तीसरे साल के अंदर मैंने ज्वाइन किया है। तो उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले 2 साल में यहाँ पे आके पढ़ा था। और मैं आपकी एक्टिंग क्लास के अंदर टीचर हूँ। मेरी आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है ये थिएट्रिकल वॉइस है। अगर ये आवाज़ आप नहीं निकाल सकते तो एक्टिंग का सोचना भी मत। मैं ये समझता था कि मुझे सब कुछ आता है, मैं स्कूल लाइफ से थिएटर करता हुआ आ रहा हूँ और बस अभी बहुत कुछ हो गया, अब कुछ भी हो गया, चाहे कैमरा फेस भी कर सकता हूँ, एक्टिंग 1200-1300 पब्लिक भी फेस कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ पे आके पता चला मेड में कि नहीं यार, आप तो थिएटर का टी भी नहीं जानते, थिएटर का टी भी नहीं जानते। तो फिर मुझे अब पता चला कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ। कोशिश करें जो भी तस्वीर बनती जाए उसकी एक कहानी अगर बन रही है तो कहानी प्रोग्रेशन में रहे, आगे बढ़े। कहानी आगे बढ़नी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। कहानी रोकनी नहीं है किसी ने। ओके दोस्तों, नाला अच्छा ओके, ऐसी फ्रीज रहना। कोशिश करो आउट ऑफ द बॉक्स इस पिक्चर में कुछ नया रंग भरो, उसको सहारा मत दो। लोग आ रहे हैं उसको सहारा देखने, मेरे हिसाब से कहानी रुक रही है, कोई नई चीज़। मेरा ख्याल है कि लियारी स्टार्स का जो प्रोजेक्ट है वो लियारी के जो बच्चे हैं किसी हद तक उनका माइंडसेट जो है वो चेंज करेगा। और चूँकि मैं ख़ुद एक एजुकेटेड घराने से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने म्यूज़िक सीखा है, मैंने गिटार बजाना सीखा है, प्रॉपरली मैंने इसको स्टडी किया है। तो जब मैं उनको उनके साथ एफिलिएशन करूँगा, उन बच्चों को मैं कुछ सिखाऊँगा, कुछ उनको एक डिफरेंट माइंडसेट की तरफ लेके आऊँगा, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का जो मकसद भी यही है कि उनको एक पसमानदा सोच से निकाल के एक थोड़ा सा एडवांस कल्चर की तरफ लेके आना, जिसमें उनको मौसीकी की तालीम और ख़ास तौर पे गिटार के हवाले से उनको मालूमात देना, उनकी ट्रेनिंग करना। और यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग चीज़ ये है कि उनको गिटार्स भी जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको पिक एंड ड्रॉप दिया जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत जज्बे वाला एक जो है इक़दाम है जो कि मैड स्कूल उठाने जा रहा है। म्यूज़िक की क्या लैंग्वेज है? म्यूज़िक की लैंग्वेज जो पुराने बच्चे उनको तो पता होगा और जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये स्टार्ट होता है सी से, सी, उसके बाद सी शार्प। सुनना, है एक रोमांटिक सी फील है। यही साउंड यहाँ पर भी है, सेम साउंड है, लेकिन ये सबसे मोटा था, ये उससे थोड़ा कम। सेम सा यहाँ पर भी है, सेम सा यहाँ पर। मेरी तो ये है कि जहाँ जाना चाहें जाएं, जहाँ आपको पसंद आए, सिंगिंग हो, पढ़ाई हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी बनना चाहें एज ए पेरेंट, कोई फिक्सेशन नहीं है कि आप चीज़ ये बनना है तो ये नहीं बनना, कुछ भी करना वो करना चाहिए। ये तो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट है कि मैं किसी के सामने ऑडिशन दिया है। अगर मैं इस फील्ड में या इस एक्ट में मैं डीपली चली गई और मुझे लग रहा है कि मैं इतनी काबिल हूँ, अगर ये प्रोफेशन में आता है तो मैं इसे इंक्लूड करना चाहूँगी, क्योंकि पापा की तरफ से पूरी सपोर्ट है, तो ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। अगर चली जाऊँ भी सिंगिंग की तरफ सो इट्स ओके। अब्बू ने मुझे मना किया कि इन चीज़ों में नहीं जाओ। मैंने अब्बू को कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलत नहीं है, मैं आपको कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। तो मैंने अब्बू को करके दिखाया कि भाई ऐसा नहीं है, और अब्बू खुद ही मेरे सपोर्ट में आ गए। मैं लोगों के सामने अपना टैलेंट ज़ाहिर नहीं कर सकता था। मैं घर पे तो गा लेता था, अकेले तो सब गा लेते हैं, मैं लोगों के सामने नहीं गा पाता था, या लोगों के सामने कुछ बातें भी बहुत कम कर पाता था मैं, क्योंकि मैं घर से ज़्यादा बार निकलता नहीं था। पेरेंट्स के लोड, पढ़ाई, ये वो, तो पढ़ाई को अलग तवज्जो देनी पड़ती थी, ये मेरा अलग एक रिलेशन था म्यूज़िक से। तो यहाँ पे आने से मेरी वो जो सारी चीज़ें थी ना वो डिक्रीज़ होने लगी, और मेरा जो एक पैशन था अपनी मंजिल की जानिब
वो इंक्रीज़ होने लगा कि हाँ अब मुझे कुछ लग रहा है कि मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ, मैं उसको हासिल कर सकता हूँ. One of the key things that we were driving at was to increase the level of tolerance amongst kids. Now, the children that we were getting, they were coming from various different backgrounds. They were Sindhis, they were Balochis, they were Christians, they were Hindus. Because Lyari is so culturally and ethnically diverse, the mix of students that we got were equally diverse. One of the main things that we realized as we continued with this program was the walls that these children had built around themselves, the preconceived notions, the biases, the prejudices that they had against somebody from another community were slowly melting away. It makes you feel so special जब आप अच्छे अच्छे स्वीट लोगों के साथ रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से वो हैं, अलग अलग रिलीजन से वो जो हैं कनेक्टेड हैं, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है. और मैं समझता हूँ कि मुझे जो सीखने को मिला वो ये है कि एक जो बायस होती है अनकॉन्शियस, वो ख़त्म हो गई कि मैं किसी को देखते ही मैं कह दूँ कि यार ये फ़लाना है, ढिमकाना है, सोचते हुए मैं इन्होंने जज कर लेता हूँ. तो वो चीज़ मेरे अंदर ख़त्म हो गई और अच्छी चीज़ें जो है बेदार होना शुरू हो गई हैं और अच्छी चीज़ें सीखना शुरू हो गई. It came to our knowledge that it was extremely important for us to give additional support to these kids. For phase 3, we worked on and thus introduced the mentorship program. Now, the mentorship program is sort of like a big brother, big sister program, where we got our students who had been with us for the last couple of years to be the big brothers, and we got the younger, newer students who were joining us for the first time to become the little brothers, so the mentor and the mentee, so to speak. In addition to that, we also introduced a psychologist, a child psychologist, into the whole affair. And Dr. Kiran Bashir was very integral because she introduced the concept of the mentorship program. She created outlines for what to talk about, what not to talk about, and helped us develop a framework for the mentorship program. तीन लफ्ज़ हैं जो कि एक काउंसलर, एक मेंटोर ज़्यादातर अपने साथ के जो लोग हैं उनके साथ इस्तेमाल करता है. ये लफ्ज़ हैं थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर. आपकी सोच, आपने जो महसूस किया, एहसास, और जो आपने किया, आपका बिहेवियर. Quite often we think that when we are engaging with people, because we are not living in a bubble, we are not living in a vacuum, you see, we are living with people. And living with people requires skill, it requires your talent. It requires understanding of social norms, what to do, when to do it, how to adjust to difficult situations, and trust me, there will be plenty. If you happen to belong to a lower socioeconomic status, there will be several more. And still, dealing with life, dealing with people, dealing with society cannot be easy. सिलेक्शन हुई कि मेंटर और मेंटी कौन होंगे, तो मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैं मेंटर हुई और मेरे जो मेंटी थे वो अयाज़ अली, जिन्हें मैं बहुत टाइम से जानती थी, मेरे फ्रेंड रहे. लेकिन जब मैं उनकी मेंटर बनी तो उस वक्त मुझे इनके बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ. मेंटर ने मुझे एक गाइड किया बहुत अच्छे तरीके से, एक भाई के तरीके से. मुझे कहा कि कोई काम करने से पहले अंजाम का नहीं सोचना चाहिए. अगर अंजाम का सोचने लग गए तो आप काम कोई कर नहीं पाओगे. जैसे कि मैं सिंगिंग करता था, मैं डरता था कि लोग मुझ पर हंसेंगे कि मैं गा सकता हूँ या नहीं गा सकता हूँ, तो मैं उस वजह से सिंगिंग नहीं. आज मैं माशाल्लाह से 1-2 सॉन्ग्स भी मैंने रिकॉर्ड किए घर पे ही बैठ के अपने, और आहिस्ते आहिस्ते में इम्प्रूवमेंट हो रही है मेरी सिंगिंग में, और मेड स्कूल की वजह से ही हो रही है. मैंने अपने मेंटी के तमाम व्यूज़ जाने कि वो कहना क्या चाह रहा है. मतलब उनके घर में कोई बाज़ औक़ात होता है कि घरों में भी कोई नहीं सुन रहे होते हमारी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया, उन्होंने भी मुझे बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा शेयरिंग करते थे, बातचीत करते थे. मैंने उनके मसाइल हल करने में उनकी हेल्प की है और उनकी बात जानने की कोशिश की, उनका आखिर दिल क्या है. इंसान की ज़िंदगी में जितने ही मसाइल आते हैं, कुछ वो अपने वालिदैन को भी बता नहीं सकते, कुछ दोस्तों को बताते हैं, लेकिन दोस्त भी उस तरीके पर आपके परेशानी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते जैसे एक सच्चा दोस्त करता हो. So we felt that it was important for them to be involved not just in a mentorship program with me, but also in peer supervision, where each person would be engaged with another based on a certain level of emotional understanding,
So certain children were chosen as peers, supervisors, and we termed it for their understanding as Sathi, which means a person who is a partner. And that was something indicating that they would be able to talk to each other, share things with each other freely, openly. तो मेरे मेंटोर थे आदिल, तो उन्होंने काफ़ी मतलब मेरे मसले को अपना समझा, तो उन्होंने मुझे इस कदर समझा कि मैं उन पर भरोसा कर सकूं एक भाई होने के नाते, तो मैं अपनी मसला उसको बता दूं ताकि वो मुझे हल बता दें. One of the biggest findings that we had was that it was not just the mentees who were getting positively affected by this relationship, but it was also the mentors. So really the positive effect was a two-way street. As a mentor मैं काम कर रहा था, लेकिन सीखने को मुझे बहुत ज़्यादा मिला. मुझे ऐसा लगा कि मैं मेंटी हूँ और वो मेंटोर हैं मेरे. वो बहुत सी आप कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस था जिन्हें आप जो है प्रॉपर नहीं कह सकते, जो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो. तो उन जैसी सरगर्मियों में वो मुलविस था. लेकिन जब हम एक दूसरे को जानने लगे और एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने लगे, जब हम एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर करने लगे, तो हम दोनों में तब्दीली आने लग गई. बुरी सोबत मुझ पर बिल्कुल हावी हो चुका था कि मतलब मैं उनके बगैर नहीं रह सकता था. जैसे एक होता है ना दोस्तों का नशा, और दोस्तों के नशे में बिल्कुल मुझे अंधेरे ही में डाल दिया. मीर हारिस में ये तब्दीली आना स्टार्ट हो गई थी कि वो नारकोटिक्स वगैरह यूज़ बहुत कर रहा था. तो मुझे ये लगा कि वो थोड़ी सी जो है पहले से इंटेंसिटी कम हो गई. अब वो जो रेशियो था पहले से वो कम हो गया, विच वॉज लाइक मेरा एम जो है वो पूरा हो चुका था. मेरी जो है मेरी एम यही थी. एक स्टूडेंट मेरे पास आया था जब मैं ऑडिशन के लिए गया, तो उसने क्लास के अंदर एक दूसरे स्टूडेंट को डांट दिया था और मरने मारने पे ये वाली बात करना, मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम जानते नहीं हो, ये वाली बात शुरू कर दी थी. और मैं बड़ा घबराया था, हमारे साथ जो टीम थी वो भी घबराई थी कि ये किस तरह का स्टूडेंट आया है. हमने उसे नहीं लिया, बट उसकी लगन थी. उसके वालिद साहब ने कहा कि नहीं प्लीज़, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ के पढ़े. उसने कोर्स स्टार्ट किया. हमने फिर रिस्क लेके कि एक बच्चे को ठीक है पढ़ाया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए ऐसे बच्चे के साथ जिसका टॉलरेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं है, जो ऑडिशन के अंदर लड़ गया था. आफ्टर 3.5 months वो बच्चा बिल्कुल बदल गया. ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई चेंज आ गया. जिस बच्चे से उसका झगड़ा हुआ था वो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया. तो ऑब्वियसली फ़र्क आता है. ये 3 महीने या 3.5 महीने की बात नहीं है. 3 महीने 3.5 महीने के अंदर उसका दिमाग कितना खुला है, ये सबसे बड़ी बात. Part of the mentorship program was to enable the mentors and the mentees to go out and have time and space for bonding. So since we are an arts organization and all the focus is on arts, we planned various art exposure activities with the kids. We took them to see a concert. We took them to see a theatre play. We took them to the cinema to watch a Pakistani movie for the first time. And these were opportunities and these were spaces that we created where the mentors and the mentees actually had the opportunity to spend time, to bond, and also to critically start analyzing all these different pieces of art they have been exposed to. शहर समंदर के किनारे है बड़ा कराची, गरीबों के सहारे है चढ़ रहा कराची, अमीरों के भी हाथों है लुट रहा कराची, जहन्नुम के बीच. सीखने का तो अपनी जगह एक अमल है, लेकिन लाइव इवेंट्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस कैसे होती है, सेलिब्रिटीज़ से मिलवाना, और उन्होंने आके उनको एक राह का, यानी कि एक राह दिखाई उन्होंने आके कि भाई अगर आपने रिकॉर्डिंग साइड पे जाना है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, अगर आपने परफॉर्मेंस साइड पे जाना है, परफॉर्मेंस कैसे होती है, परफॉर्मेंस के टूल्स क्या होते हैं. ये सब चीज़ें मैड स्कूल ने उनको मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे चांसेस दिए हैं. So a big thank you to Umran from the Mad School team and a big thank you from you guys also to Umran. एक तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस होती है और एक परफॉर्मेंस होती है. परफॉर्मेंस अलग होती है और रिकॉर्डिंग प्रोसेस अलग होती है. मैं अपने भाई और मेरे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ. जो मेरे भाई हैं वो स्टेज पे खड़े होके हर एक को नचवा देंगे गा के. अब उनको जब मैं स्टूडियो लेकर जाता हूँ
तो उनसे बिल्कुल नहीं गाया जाता। और उसी तरह मैं जितना लाइव बुरा गाता हूँ उतना मैं अच्छा स्टूडियो में कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़रा उसको तरीके से मैं कहता हूँ, अच्छा मुझे पता है कितना मुझे किस तरह करना है, उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा वो अलग एक रोक होता है। तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग एक अलग प्रोसेस है। आई थिंक व्हेन दे सी me sitting right there and telling my story as a completely normal human being in no other capacity than that, it does seem doable and reachable. So for them to have that experience, and definitely for me to have that experience, knowing that there are so many talented kids out there that want to do something, it gives me hope for the future. It gives me it makes things exciting for me. I feel like, okay, there's so many things that can be done. एक बहुत पर्सनल डिस्कशन है। मैंने ये वाली डिस्कशन आज से पहले कभी ज़िंदगी में किसी के साथ नहीं की, पहली बात तो ये, क्योंकि ये एक बहुत पर्सनल बात होती है जो आप किसी के साथ शेयर करते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या देखा, आपने क्या महसूस किया और आप किन हालात से होते हुए यहाँ तक आए। लेकिन ये क्योंकि ये इस तरह का सेशन है, मुझे लगता है कि ये वो बहुत सारी बातें हम जब इंटरव्यूज़ में जाते हैं कहीं तो आप पूछते हैं आपने क्या किया, हम कहते हैं बहुत मेहनत की, वो तो चलो एक, लेकिन कुछ मैं इतनी पर्सनल बातें आपसे शेयर करूंगा आज के, जिससे शायद आपको कोई मोटिवेशन मिल सके, शायद आप डेडिकेशन आपकी और बढ़ जाए काम करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें हैं और इसको मीन कीजिएगा, इसको वैल्यू दीजिएगा समझने के लिए। मैं सिर्फ आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। पर्सपेक्टिव लोगों का आप चेंज करोगे। भाई वो कह रहा है ना आप सीरियस नहीं हो, कि सीरियस काम करो कोई, आप इस काम के अंदर इतने सीरियस हो जाओ कि कोई सीन ही नहीं बाकी रहे। जितने सीरियस आप होंगे, देखो दुनिया आपको उस नज़रों से देखेगी जिस नज़र से आप अपने आप को देखते हो। ये बात याद रखना। आप ये एक्सरसाइज किया करो, कभी शीशे के सामने खड़े होकर देखा करो खुद को अपनी आंखों में। Our students are, they're so much more confident today. We see increased self-esteem. We see better awareness. We see them understanding themselves so much better. And it's those children who are not going to get swayed. You need to be of strong mind. You need to have a high sense of self-esteem, almost pride in your own self, in your community, in your family. And those are the children who are not going to go into drugs, drinking, alcohol, gangs. We have to remember that the place that these children come from, they are exposed to these negativities far more. At the age of 12, 13, 14, they have no place to go and play. They don't have very many playgrounds. They're playing on the streets. They're exposed to the gang members who are sitting on the streets, who at this young, vulnerable age will prey upon these children, will target these children, because they know that if you pick up somebody who's 11 years old, by the time they're 15, they're going to put a gun in their hand. By the time they're 17, they're going to be robbing people. By the time they're 21, they would have committed their first murder. We need to target these children. We need these kids to understand, to be so whole and to be so emotionally fulfilled, strong in mind, strong in heart, that when they are exposed to these negative activities, they can take the route of love, that they can take the route of empathy, that they don't get swayed, that they don't destroy themselves, that they don't destroy their family life, they don't destroy their community. Arts education, arts speak to the heart. It's the call from one heart to the other. There is no lecturing, there is no preaching, there is just a feeling of oneness when you are with the art form that you choose. When you sing that song, when you play that melody on the guitar, when you do a dance, when you perform a monologue, you forget about the world. The only thing that you're connected to is your own emotion. And arts allows you to open your heart up,
to speak from the heart, allows you to connect with yourself, allows you to go to a deeper place of understanding, of empathy, of tolerance, of love. That's what our society is missing, isn't it? बिल्कुल, लैरी स्टार्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने हमारी सोच तब्दील कर दी और हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग उसने चेंज कर दिया और हमारी जो है लाइफ चेंज हो चुकी है बेसिकली। मैं समझता हूँ लियारी स्टार जैसा प्रोजेक्ट जो है वो अगर कंटिन्यू रहे तो ये इट इज़ नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पसमानदा इलाके के बच्चों को, ये एक बहुत ही बड़े जज्बे की बात है और इसका कंटिन्यू रखना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक मैड स्कूल फेस करता जाएगा तब तक मैं फेस में आती जाऊंगी। मेरी ख्वाहिश यही है। हालांकि घर वाले कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या मैं शादी में अपने बच्चों को भी लेकर यहीं पे आऊँगी, तो बहुत दूर तक की मैंने सोची हुई है। बस थैंक यू सो मच निदा मैम, सर हमजा, क्योंकि आप लोग टीचर नहीं रहे, मेरी नज़र में आप मेरी फैमिली रहे, कि आप सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, साथ दिया, हमें बहुत सारे चांसेस दिए। इनफैक्ट हम न्यू स्टूडेंट से मिले, बहुत ज़्यादा घूमा फिरा, एक बहुत खूबसूरत फैमिली दी मुझे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो प्रोग्राम में आने से पहले बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना कुछ सीख कर जाएंगे। बेसिकली हुआ यूँ कि हम घर पे बजाते थे, मैं और खलील, हमने वैसे ही सीखा है, हमने यूट्यूब से ही सीखा था। तो जब हम यहाँ इंटर हुए इस प्रोग्राम में तो अब ऐसा है कि हम खुद से बहुत कुछ अब कर सकते हैं। हमें वो रूट पता चल गया टीचर से कि टर्न बाय टर्न हमें बेसिकली चीज़ें कौन सी सीखनी है, हमें एक्सरसाइजेस क्या करनी है और कोड्स को कैसे मेंटेन करना है, उनको एडिट करना है और अपने कोड्स बनाने। तो ये है कि मैड स्कूल में आने से स्पेशली हम सबको जो शौक़ रखते हैं वाकई में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और हमें एक रास्ता मिल गया कि अब हम इस पे चलकर और बहुत कुछ सीख सकते हैं। As phase 3 comes to an end, we're now preparing for phase 4 and we're very pleased to have received funding. We're doing things again differently. We're never satisfied with how we did things before. We always want to grow and enrich the program further. We've been working in Lyari for 3-4 years now, and for the first time, we're venturing out to a new area entirely. Math School is one organization. We have a certain amount of capacity. We can't bring hundreds and thousands of children over here because our capacity and our resources are limited. So the next best option that we thought would really, really work is empower the community. We have 250 children from Lyari who've studied with us in the last couple of years. We take 10 from them. They then go on to train hundreds and hundreds of people within their own community. So they use their local schools, they use their community spaces, and they start teaching the next generation, the next bunch of 12, 13, 14-year-olds who have a passion for the arts. So we're trying to empower the Lyari community in itself. क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ तो मुझे ये ज़्यादा होता है कि मैं अपने बच्चों को एक्टिंग के थ्रू सिखाऊं कि करना क्या है आखिर उनके लाइफ में। तो एक्टिंग मैं इसलिए सीख रही हूँ, या मैं बाज़ औक़ात अपने बच्चों को जो सर मीसा मुझे एक्टिविटीज़ कराते हैं मैं वो जाके वहाँ उन्हें करवाती हूँ और वो भी इंटरेस्ट लेते हैं, बोलते हैं मिस हमें भी ले जाओ, हमें भी ले जाओ। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने तो जस्ट यहाँ स्टार्ट किया, पहले तो मुझे खुद सीखना है। पहले मुझे खुद सीखना है कि क्या चीज़ है, क्या किस तरह किया जाता है, क्या किस तरह नहीं किया जाता है। तो सीखने के बाद बकौल आसिम के कि हम वहाँ पे एक म्यूज़िक स्कूल खोलना चाहेंगे जहाँ फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर हमारे लियारी में बहुत हैं, या ऐसे बच्चे जो यहाँ इस कम्युनिटी में या इस इलाके में जो है सोसाइटी में नहीं आ पाते सीखने के लिए इतनी बड़ी बड़ी जो है वेन्यूज़ पे। तो यही हम करना चाहेंगे कि उनको जो है ज़्यादा सोसाइटल बनाया जाए और उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ दें अपने बिहाफ पे। मैड स्कूल की वजह से मैं आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्मेंस कर सकी, मैंने बहुत सारे प्लेस किए और इनफैक्ट अब मुझे इतनी खुशी है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं थिएटर पढ़ाती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जो मैंने पढ़ा सर सुनील सर मीसम से मैड स्कूल की तरफ से, तो अब मैं वो एज अ जॉब कर रही हूँ, मैं थिएटर पढ़ा रही हूँ। तो उसके लिए थैंक यू सो मच मैड स्कूल, निदा मैम, सर हमजा और मेरी एक मैड फैमिली जो है वो, उसके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Math School is a non-for-profit. We are a registered society. We are here. We've been providing art education to children from marginalized communities. We've been doing this for 3 or 4 years. Besides this, we've put up countless festivals for this city. We've put up music programs. We've worked in various schools.
a whole bunch of different programs that we've done that you can find on our Facebook page. Our website is still under construction. We are now asking our local community to step up and help. We are always ready, always available if you want to come and have a chat with us, if you want to come and see the space, if you want to come and see the kind of work that we are doing. We believe that arts has the power to change the world. Arts has the power to change the landscape of our city. Arts has the power to change hearts, to pick up people from marginalized communities, to pick up students who are vulnerable and give them a different way, give them a different route. We can't do this by ourselves. We have limited resources. We have limited space. We need the community to step up. We need the government to step up and fund, donate, whether it's in cash, whether it's in kind. There are things that you can do which will make this program possible for many, many years to come. We have a responsibility and we must fulfill it today. Let